Hello students of class 12th. Today in my video lecture we explain next topics of the chapter solid states. तो सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक्स को आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच एज क्रिस्टल लैटिस। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में वी एक्सप्लेन व्हाट इज लैटिस एंड व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। तो वी सी the given points. A regular order arrangement of a constitutes particles in three dimensions is called crystal lattice. That is definition of crystal lattice. What is crystal lattice? A regular order arrangement of a constitutes particles in three dimensions is called crystal lattice, such as shown in the figure. The diagram is that is 3D, that is three dimensional. You can see in the given figure three dimensional structures. That is a diagram showing a portion of 3D cubic lattice and its unit cell. So students, the given structure, that is 3D structure, and crystal lattice contain unit cell. You can see the unit cell of the given structures. We see lattice point or lattice site, the fixed position on which the constituent particles are present, called lattice point. The lattice point, students, in this given chapter we understood the term, technical term, scientific term firstly, and after it some important numerical provided in the given chapter. But in the chapter maximum term are used, maximum term knowledge, that is such as crystal lattice, lattice point or lattice site. तो lattice point और lattice site क्या है? That is define the fixed position on which the constituent particle. Constituent particle का fixed position are present का lattice point or lattice site. A group of lattice point which when repeated over and over again three dimensional. तो लैटिस पॉइंट का जो ग्रुप है जो कि रिपीट होता है ओवर एंड ओवर अगेन थ्री डायमेंशनल, गिव द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। और ये जो है जो लैटिस पॉइंट है जब ये अगेन एंड अगेन रिपीट करता है एज ए थ्री डायमेंशनल तो कंप्लीट क्या देता है? क्रिस्टल लैटिस देता है। यूनिट सेल्स, व्हाट इज यूनिट सेल्स? यूनिट सेल इट इज फाइंड एट द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स इन ए स्पेस लैटिस विच व्हेन repeated over and over again generate the complete crystal lattice. The crystal can consist of an infinite number of unit cells. The unit cells, that is units. तो इसमें से ये नेम अभी आपको जो दिया गया है यूनिट सेल, तो यूनिट सेल दैट इज यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो वन क्रिस्टल लैटिस में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इनफाइनाइट यूनिट सेल्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो बायोलॉजी में जैसे जानते हैं कि यूनिट्स ऑफ बॉडी सेल, तो नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी दैट इज यूनिट सेल। बॉडी का जो है यूनिट दैट इज सेल। तो सेम ए लैटिस कंटेन इनफाइनाइट यूनिट सेल्स। द crystal can consist of an infinite number of unit cell. ये क्रिस्टल जो है इसमें यूनिट सेल के नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं।
पैरामीटर्स विच कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या है? डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल along the three edges, along the three edges, that is A, B and C. These edges may or may not be mutually perpendicular. तो ये फर्स्ट पैरामीटर्स दिखाई दिया। सेकेंड, inclining of the edges to give other, this is denoted by the angle between the edges alpha and respectively. Alpha is the angle between the edges B and C, beta is the angle between the edges A and C, and gamma is the angle between A and B, just like given in the figure. दैट इज यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल में स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ ए एंड बी दैट इज एंगल गामा, ए एंड सी एंगल बीटा, एंड सी एंड बी एंगल अल्फा। सेवन क्रिस्टल सिस्टम in the given chapters, there are crystal system, that is 7 crystal system। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम इसमें जो दिया गया है, इस क्रिस्टल सिस्टम को हम 1.1 यहाँ शो कर रहे हैं और इसको आपको जो है राइट एंड लर्न करना है। फर्स्ट क्यूबिक, क्यूबिक में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, इसका मीन्स है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये क्यूबिक फॉर्म है। सेकेंड हम आते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90, लेकिन कंडीशन यहाँ होता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इज नॉट सी, इज नॉट इक्वल सी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में क्या देखेंगे? अल्फा बीटा गामा दैट इज 90, बट ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी। ये टर्म कंडीशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 पे आते हैं मोनोक्लिनिक। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल 90, बीटा इज नॉट 90, एंड ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी। नंबर 5 पे आते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल 90, गामा 120, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल सी। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। तो रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में स्टूडेंट्स आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट 90, बट ए बी सी आर इक्वल्स। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का सिचुएशंस। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखा 7 क्रिस्टल सिस्टम में फर्स्ट क्यूबिक, सेकेंड टेट्रागोनल, थर्ड आर्थोरोम्बिक, फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ हेक्सागोनल, 6 रोम्बोहेड्रल एंड 7 ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है आपको दिया गया है 7 यूनिट सेल्स एंड द पोजिशंस एंड द एंगल एंड द एजेज, सो केयरफुली सीन एंड राइट एंड लर्न इट। आफ्टर इट we see the type of unit cells। टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के टाइप्स। यूनिट सेल टाइप्स primitive or simple unit cells have constitutes particles only at its corner। तो primitive
और सेकेंड क्या है कि सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर दोज यूनिट सेल्स इन विच वन आर मोर कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल आर प्रेजेंट एज ए पोजिशन इन एडिशन टू दोज प्रेजेंट इन द कॉर्नर। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल जो है स्टूडेंट से आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है कि प्राइमिटिव, फर्स्ट दैट इज प्राइमिटिव आर सिंपल यूनिट सेल्स और सेकेंड जो है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सो वी स्टडी in the chapter type of centered unit cell. The type of centered unit cell that is first point face centered unit cell, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं FCC face centered unit cell. It consists of one constitutes particle present in the center of each face in addition those present in the corner. तो सेंटर जो FCC है तो FCC में क्या होता है स्टूडेंट जो है कि पर सेल्स में प्रेजेंट एट द सेंटर वन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फेस। सेकेंड है बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स। बॉडी सेंटर यूनिट सेल को हम लोग शॉर्ट में BCC नाम दिया जाता है। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स में इट कंसिस्ट ऑफ ए वन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट इट्स बॉडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स अभी FCC में क्या देखें आप कि FCC में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होता है वह ईच फेस में प्रेजेंट होता है, और यहाँ जो है जो BC है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स है, इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है दैट इज प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड। थर्ड पॉइंट है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल ECC। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल इट कंसिस्ट ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस इन एडिशन टू दोज प्रेजेंट इन द कॉर्नर। तो इसमें से यहाँ आपको कुछ फिगर दिखाया गया है। फर्स्ट फिगर्स सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल लैटिस फिगर्स है, यूनिट सेल्स हैं। अभी आपने देखा जो है कि FCC BCC एंड सेंटर्ड, और कुछ यहाँ फिगर आप जैसे इसमें देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट फिगर जो दिखाया गया नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर इज शेयर्ड इट 8 यूनिट सेल्स, ये दैट इज गिवन ओपन स्ट्रक्चर्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट जो है एक्चुअल पोजीशन ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स यहाँ हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट डिफरेंट लैटिस पोजीशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट डिफरेंट लैटिस पोजीशंस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पॉइंट फर्स्ट में देखें आप, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि फेस सेंटर्ड इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, so only half of the atom actually belong to the unit cells. सेम BCC को स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, एंड इंड सेंटर्ड। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कंक्लूजन पॉइंट्स। नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट यूनिट सेल्स। फर्स्ट है प्राइमिटिव यूनिट सेल्स हैव 1 एटम्स। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आपको जो है अच्छी तरह लर्न करना है, क्योंकि जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग देखेंगे तो हाँ इसका यूज मिलेगा आपको। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं कि फेस सेंटर्ड FCC में नंबर ऑफ एटम 3 एंड BCC में यूनिट सेल है एटम्स।
तीसरा से यह जो आप अभी देख रहे हैं इसमें जो है कि प्राइमेटिव यूनिट सेल में 1 एटम और फेस सेंटर यूनिट सेल में 3 एटम्स और बॉडी सेंटर यूनिट सेल में दैट इज़ 2 एटम्स। तीसरा से इसमें जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो भी पॉइंट आपको यहाँ दिखाया गया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो लर्न राइट्स।